how are you? Hope you all are in good health and enjoying your lockdown with family. Now you spending your time to watching TV and playing games. But we should study also. So today we are going to start our first unit, in which there are 3 chapters. In today we are taking our first chapter, that is Go Green and Go Smart. Unit 1, our surrounding. Go green and go smart. What do you understand by green? Green means environmentally friendly and ecological responsible, which can help you to protect environment for future generations. How you protect environment? How you help to save your environment? You should grow more trees to control the pollution. Don't throw the garbage outside the road. And you should also do carpooling. Do you know what do you mean by carpooling? Carpooling means sharing the car. It helps you to get rid of air pollution and traffic. In let's start the chapter. In this here is a little summary about a story, about a chapter. Here is a boy whose name is Kushag. He is very bright student. He helps. He know how to save environment, and there we learn to save environment. Let's start. Take out page number 7, in which there are 2 types of list A and list B. If you choose list A, that you know much about the need for keeping that you don't know much about the need for keeping our environment clean. In list B, if you mark more things in your list items in list B, then congrats, you are certainly a smart shopper. So let's do this activity yourself. Read some entries from the diary of Kushag, a 10-year-old boy, and decide if he is a smart shopper. अब हम इसमें एक डायरी में पढ़ेंगे कुशाग के बारे में, जो 10 साल का बच्चा है और वो कैसे अच्छा शॉपर बनता है. वर्ड वेल्थ दिया हुआ इसमें. आइटम मतलब थिंग, स्मार्ट मतलब क्लेवर, एनवायरनमेंट आर सराउंड. टेक आउट पेज नंबर 8. Read and rejoice. Kushag is a bright student. He has topped the class with flying color. कुशाग एक ब्राइट स्टूडेंट है जिसने अपनी क्लास को टॉप किया है बहुत ही अच्छे नंबरों से. अब वो क्लास 5th में आ गया है. ही इज़ फेवरेट ऑफ हिज टीचर्स एंड पेरेंट्स. वो बहुत ही फेमस है अपने टीचर्स और पेरेंट्स में, और पेरेंट्स और टीचर्स में नहीं, अपने क्लासमेट्स में भी. एवरी क्लासमेट्स लाइक्स हिम वेरी मच. टू नो द रीजन फॉर हिज पॉपुलैरिटी. इतनी पॉपुलैरिटी का रीजन जानने के लिए चलो उसकी डायरी में झांकते हैं. Here the words peep. Peep means झांकना. Let's start. April 2. उसने अपनी डायरी में फर्स्ट डेट मेंशन की हुई है, डेट April 2/20. But when we here, who is I in this line? I is Kushag. Kushag is writing here. I am very happy. I am very happy means मैं बहुत खुश हूँ. I have topped my class. मैंने अपनी क्लास को टॉप किया है. और मैं आज today I went shopping with mother. और मैं आज शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, अपनी गया था मम्मा के साथ. On my way to the market I saw the road littered with all kind of refuse. और जब मैं वहाँ गया तो मैंने रास्ते में स्प्रेडिंग देखी, कूड़े का स्प्रेड फैलाया हुआ देखा, जिसमें रिफ्यूज था. किस का था? डिस्पोजेबल ग्लास, टॉयज, प्लेट, स्पून, स्कूल बैग्स, पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी मिनरल वाटर एंड नोटबुक्स एंड मच मोर. इट वॉज अ हॉरिफाइंग साइट. और ये बहुत ही भयानक साइट था. We should also, when we go outside the road and so like a litter in the road, we also feel horrified, and we should not like it. We should not like it. Mother told me to do my bit for the environment. मेरी मम्मा ने बोला कि हम environment को clean करने में help कर सकते हैं. पर कैसे? पर how her mother introduced it. Mother and I went a little further and saw 2 different color beans but put by the side of a park. जब हम आगे गए तो हमने देखा कि वहाँ पर 2 कलर के बीन्स रखे थे. बीन्स मीन्स कूड़ेदान. कौन कौन से कूड़ेदान? एक ब्लू था, एक. डू यू नो what is means green and green? Green means used for wet waste and blue means for dry waste. In your house also there are 2 types of bean, green bean and blue bean, in which you throw wet waste in your green bean and your dry waste in your blue bean. Her mother also explained about 3
R. Do you know about the 3R? 3R means reduce, reuse and recycle. These 3 R's you read about 3 R's in your previous class in your science book. The green bin was meant to put items that can be recycled: glass, metal, paper and plastic. While the blue bin was biodegradable item that would be used to make compost. By this time I was feeling thirsty. अब इस समय तक मैं बहुत प्यासा हो चुका था. I reached for a can of cola. मैं एक कोला की कैन लेने के लिए एक कियोस्क पे पहुंचा. कियोस्क मीन्स एक छोटी दुकान जहाँ पर ड्रिंकिंग का न्यूज़पेपर वगैरह आराम से मिलता था. लेकिन बट मदर स्टॉप ने, मेरी मम्मी ने मुझे स्टॉप किया और बोला एंड इंस्टेड एक टेट्रा पैक की जगह दैट कुड बी, जिसे हम सिर्फ ब्लू बीन में थ्रो कर देंगे रिड्यूस वेस्ट करने के लिए, इससे अच्छा हम ग्रॉसरी, फ्रूट्स, हाउस. इट वॉज एन आई ओपनर. इसने मेरी आँख खोली और फिर मैंने वो ना लेकर सम ग्रॉसरीज, फ्रूट्स और अदर कुछ आइटम्स लिए दैट माई मदर पुट इन द क्लोथ कैरी बैग विच शी हैड ब्रॉट विद हर. फिर हमने सब उसे कैरी बैग में डाला जो मेरी मम्मी अपने साथ घर से लाई. यू शुड लर्न ऑल्सो दिस दैट यू when you go outside the house in the market you should carry bag like jute bag. It's help. Now in this picture you also see how earth crying. There are glass, 2 types of beans, green beans and blue beans. Green beans may we use paper and in blue beans aluminium, plastic, glass and tin. Here also word wealth. Peep means to look quickly or and secretly. Litter spread around. Refuse waste material. Horrifying, making one feel shocked, disgusted or frightened. Curious, having a strong desire to know something. Reduce, to minimize. Reuse, to use a thing by changing it and another form. Recycle, to treat used things so that they can be used again. Kiosk, a small shop open at the front where newspaper, drink, etc. are sold. Take up next page. Next page, April 6. Here it is a site of classroom. Our class has decided to organize a green week. उस क्लास ने उनकी क्लास ने डिसाइड किया है, हमारी क्लास ने डिसाइड किया है एक ग्रीन वीक को ऑर्गेनाइज करने के लिए. और उस मेरी टीचर का नाम है मिस शुभांगी. आर क्लास टीचर मिस शुभांगी डिस्कस्ड with us the way to reduce waste, कि हम वेस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. हाउ एक्साइटिंग एंड एनरिचिंग द सेशन वॉर. मुझे बड़ा एक्साइटिंग हुआ कि कितना मज़ेदार सेशन होगा ये. द डिस्कशन बिकेम लाइवली. वो डिस्कशन जैसे हम क्लास में बैठकर लाइवली हैं वैसे वो बच्चे भी बैठकर ही आंसर कर रहे हैं और अपना ओपिनियन एंथुजियास्टिकली दे रहे हैं एंड फुल ऑफ एक्टिव. I told the class to use the reverse of the printout to do their rough work or practice math sums. मैंने अपनी क्लास को बोला कि हम जो प्रिंट आउट पेज वेस्ट कर देते हैं हमें वो वेस्ट नहीं करनी चाहिए. हम उस प्रिंट आउट के पेज के पीछे भी अपने मैथ्स के सम्स को यूज़ कर सकते हैं, मैथ सम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ऑल वर अमेज मीन सब बड़े आश्चर्य से देखने लगे. When Miss Subhangi told us that for every 42 notebooks made from 100% recycled paper, 42 notebooks बनाने के लिए 100% रिसाइकल करना पड़ता है पेपर को. एंड एंटायर ट्री वॉर, इससे ट्री भी क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा. शी कंक्लूडेड बाय सेइंग लुक फॉर द साइन ऑफ 3R. इस आर के 3 साइन को देखो. द होल क्लास क्लैप, सारी क्लास क्लैप करना शुरू कर देती है. मैक एडवाइजर्स टू यूज क्लोथ नैपकिन एंड रीयूजेबल प्लेट्स इन प्लेस ऑफ डिस्पोजल पेपर प्लेट्स एंड नैपकिन. महक ने एडवाइस किया कि हमें क्लोथ नैपकिन का यूज़ कर सकते हैं और वो प्लेट्स को यूज़ करना चाहिए जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमें गार्बेज को डस्टबिन में ना थ्रो करना पड़े.
प्लेट्स एंड नैपकिन। आई लाइक करण's आइडियाज ऑफ शेयरिंग ओल्ड टॉय। और करण ने का भी आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम कैसे टॉयज़ को, ओल्ड टॉयज़ को शेयर कर सकते हैं। मैगजीन्स को भी इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम अवे, फेंकने से अच्छा है कि हम उसको दूसरे बच्चों को शेयर कर सकते हैं। अच्छा, यू टोल्ड हाउ वी शेयर, हम कैसे शेयर कर सकते हैं। वी शुड गिव दीज आइटम्स टू आवर नीडी स्टूडेंट्स in our surrounding, in our area. Seema requested all of us to bring water bottle and avoid buying packed water. और शीना ने हमको रिक्वेस्ट करी कि हमें अपनी वाटर बॉटल लानी चाहिए और हमें पैक्ड वाटर नहीं खरीदना चाहिए। टू सेलिब्रेट अर्थ आवर वंस अ मंथ, और हमें अर्थ आवर को भी महीने में एक बार सेलिब्रेट करना चाहिए। ये पुरु का आइडिया बहुत ग्रेट था, विच वॉज हर्गली अपलॉडेड, और ये इसको बड़े जगह से सराहाया भी, अपलॉडेड मीन्स सराहाया गया। बाय द एंड ऑफ द क्लास आई वॉज वाइजर एंड फुल ऑफ ग्रीन आइडिया। अब हम आखिरी में जब क्लास हमारी ख़त्म होने लगी तो हम बहुत वाइजर हो गए कि हम कैसे, और हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ गए कि हम कैसे गो ग्रीन कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को। द 3 hours impressed me so much. इन 3 hours ने मुझे इतना इम्प्रेस किया that I decided to read about them here as a strong reminder. इसलिए फिर मैंने इसको लिख भी दिया जो कि मुझे रिमाइंड करवाता रहेगा। Of the 3 hours recycles means to make new things from old one. 3 hours का मतलब हो गया कि न्यू थिंग्स, कैसे हम पुरानी चीज़ों से न्यू थिंग्स बना सकते हैं। Paper, scrap iron, old aluminium cans and glass bottle can be recycled. इनको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। Paper is made into pulp and then into paper again. पेपर को क्रश करके पल्प बना दिया जाता है और उससे फिर दोबारा से ही पेपर बना दिया जाता है। Metal and glass are crushed, melted and used for making new things. मेटल और ग्लास को क्रश करके दोबारा से मेल्ट किया जाता है और उससे नई चीज़ बनाई जाती है। रीयूज का मतलब है क्लीनिंग एंड यूजिंग द सेम ऑब्जेक्ट अगेन, उसी को दोबारा से ही यूज़ कर लेना, सेम ऑब्जेक्ट को साफ करके। Motor parts and glass bottle are used again by companies that deal with them. मोटर कार्स और मोटर पार्ट्स और जो ग्लास बॉटल्स हैं वो कंपनीज के द्वारा यूज़ करी जाती है दोबारा से, उनसे डील करने के बाद। रिड्यूस मीन्स दैट वी शुड ट्राई टू रिड्यूस द गार्बेज, हमें गार्बेज कम करने की कोशिश करनी चाहिए। दैट वी प्रोड्यूस वी कैन डू सो बाय नॉट यूजिंग थ्रो अवे थिंग, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बाहर नहीं थ्रो करना चाहिए। यही हुआ ना समझ, है ना। 3 R के साइंस, अर्थ आर, पेपर बॉटल हेयर। पेज नंबर 9 were well concluded मतलब set something at the end. Earth are a worldwide event organized annually towards the end of March, encouraging people to turn off the non-essential light for 1 hour. Applauded, approved and action by clapping. Clap कर जैसे Earth March, Earth Day we also celebrate in our school. We make posters and Page number 10, April 10. Now I think I can shop smartly and confidently. अब मैं सोचता हूँ कि मैं आराम से सब खरीद कर सकता हूँ, मार्केटिंग कर सकता हूँ। आई वॉज फीलिंग मोर रिस्पॉन्सिबल वाइल बाइंग माई स्टेशनरी एंड नोटबुक। अब मैं अपने आप को बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल समझ रहा हूँ जब मैं अपनी स्टेशनरी और नोटबुक that I made sure to look for the recyclable sign on every item I bought. और मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूँगा कि जब भी मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो उसमें रिसाइकल साइन देख लूँगा कि वो किस तरीके से यूज़ होता है। आई आस्क्ड द शॉपकीपर टू गिव मी नॉन टॉक्सिक कलर। मैं अपने शॉपकीपर को भी बोलूँगा कि मुझे नॉन टॉक्सिक कलर ही दें और मार्कर दें। एंड येस आई डिड नॉट फॉरगेट टू कैरी माई स्मार्ट जूट बैग टू पुट माई शॉपिंग इन। और मैं ये चीज़ नहीं भूलूँगा, फॉरगेट मतलब नहीं भूलूँगा कि कैसे जूट बैग अपने साथ ले जाना है जब भी मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ।